Hello children, welcome to my channel. We were studying chapter 6 life process. Okay, so let's start. So children, we have already done the steps of photosynthesis. तो steps of photosynthesis में मैंने आपको बता दिया था कि पहले तो क्लोरोफिल क्या करता है, it absorbs the sunlight and that sunlight is used to split water molecules, that is called photolysis of water, in which oxygen is released out and hydrogen combines with carbon dioxide and forms carbohydrate, that is the glucose form. So that these were the three main steps, but between photolysis and formation of carbohydrate there are some important reactions which takes place. Not in detail we have to study in class 10th, but the outline we have to know. So that's I am going to describe you. Okay, so after photolysis what happened? The formation of assimilative power takes place. Means here the assimilative powers formation takes place in two steps. That is called steps of photosynthesis. That are photochemical phase and biochemical phase. Photochemical phase, photo means light, means this phase takes place in the presence of lights. That's why it is also called light reaction. In this light reaction, hydrolysis, that I have already discussed, that hydrolysis, that is photolysis of water, and that hydrogen is used for many reactions and formation of assimilatory power. Assimilatory power is ATP, adenosine triphosphate, and NADPH2. These are the energy molecule when it breaks down. For example, ATP breaks down into ADP and one phosphate molecules come out. So here the phosphate bond break down and it releases energy. So as like that, this NADPH also break down into NADP and H molecules. So here the bonds break down, that's why energy comes out. So that energy is used for the photosynthesis. So these assimilatory powers forms during photochemical phase. The next one is the biochemical phase. In biochemical phase, these assimilatory power are used for making glucose, where RUBP ribulose biphosphate, ये enzymes है that in the presence of carbon dioxide form phosphoglyceric acid with ATP and NADPH2. This all combines to form glucose. मीन्स कि अगर ये assimilatory power नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा ग्लूकोज यानी ये इस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो फोटोकेमिकल फेज और बायोकेमिकल फेज ये जब होता है तब हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो नॉट इन योर 10th CBSE board, but these are the steps that we have to know how we are obtaining carbohydrate during photosynthesis. So this is all about the photosynthesis. So during photosynthesis, one of the important topic, that is the stomata. We have to study that what is stomata. I think you all know that stomata are the pores. If you have seen the leaf, then the terrestrial leaves, plants leaves, they have small pores like structure on the lower layer of the leaf. Suppose this is the leaf, तो leaf के lower layer में small pores पाए जाते हैं, that is called stomata. They are the tiny pores present in the epidermis of leaf. Epidermis यानी कि leaf के ऊपर के layer, लीफ के ऊपर के लेयर को यानी प्लांट के पूरे ऊपर के लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं. दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th. तो एपिडर्मिस में ही ये पाए जाते हैं स्टोमेटा इन द मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स के बीच में स्टोमेटा पाए जाते हैं. ये पेपर में आता है मेसोफिल सेल. तो एपिडर्मिस पे ग्रीन स्टेम और ग्रीन लीफ के एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा पाए जाते हैं जो गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज फॉर ट्रांसपिरेशन यूज होते हैं. व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? taking exchange of oxygen and CO2, and transpiration, removal of excess water in the form of water vapor by the प्लांट लीव जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर
जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो दीज वर द टू मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा दैट टेक्स प्लेस। तो हाउ द फंक्शन स्टोमेटा फंक्शन, और यू कैन से हाउ दिस पोर्स, जो स्टोमेटा का जो पोर होता है, हाउ इट गेट ओपन एंड क्लोज, दैट वी हैव टू नो। So let's see. So this is the stomata, where these are the pores and these are the cells which surround these pores, and these cells are called guard cell. इनको हम guard cell कहते हैं. And this green circular part, these are the chloroplast in which chlorophyll is present, and this pore is called stomatal pore, and these are the mesophyll cell or epidermal cell, you can say. So this is the stomata. How it get open and close, because when it open it take in air and it help in transpiration also, क्योंकि ये जब खुला रहेगा तभी वाटर वेपर निकलेगा या ऑक्सीजन अंदर या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा. तो it occurs when it open, but a times come then when it close also. तो how it function, let's see. The opening and closing of stomatal pore help इन द गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज यानी ओपन और क्लोज होता है स्टोमेटा, किस लिए होता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए. एंड स्टोमेटा कॉज ट्रांसपिरेशन. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा खुलेगा तो क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन. और क्लोजिंग होगा स्टोमेटा तो वो ट्रांसपिरेशन को रोकेगा. तो ये जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड आपको पता है गेट के पास होते हैं और वो ओपन करते हैं गेट को और क्लोज करते हैं ताकि बाहर आने जाने वालों को लोग जो है वो आ जा सके. तो उसी तरह ये गार्ड सेल होते हैं जो इस पोर को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं. जब ये पानी से भरे होते हैं, जब स्वेल करते हैं, यानी इनमें जब टर्जिडिटी होती है, वाटर प्रेशर होता है, तो ये ओपन हो जाते हैं. ठीक है. और जब इनमें से पानी निकल जाता है, टर्जिडिटी इनकी खत्म हो जाती है, वाटर प्रेशर खत्म हो जाता है, तो ये क्लोज हो जाते हैं. सो गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम एंड स्टोमेटा ओपन. The shrinking of guard cell close the stomata. Okay, it is clear. बहुत ईजी है. अगर वाटर प्रेशर इसके अंदर है तो ये ओपन रहेगा, और वाटर प्रेशर अगर नहीं है तो ये क्लोज हो जाएगा. Here one thing we have to note that number of stomata जो है पहले ही बता दिया मैंने कि लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं, ऊपर नहीं होते, क्योंकि ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो. ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सनलाइट के आ जाएंगे तो फिर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए वो लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं. और मोनोकोट्स प्लांट्स वो डम्बेल शेप में, जो यहाँ पे आपको बीन शेप के गार्ड सेल दिख रहे हैं, उसमें ये डम्बल शेप के होते हैं गार्ड सेल. ठीक है. वन मोर थिंग, आपको मोनोकोट शायद याद होगा. मोनोकोट हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके सीड जो हैं, सीड को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. अगर इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं तो वो डाइकॉट कहलाते हैं, जिनमें स्टोमेटा गार्ड सेल जो है तो वो बीन शेप्ड होता है. अब फॉर एग्जांपल राइस है, वीट है, उनमें डम्बल शेप का होता है. आई थिंक इट इज़ क्लियर. वन मोर थिंग हियर वी हैव टू नो दैट सक्सेलेंट प्लांट आप देखते होगे, जैसे एलोवेरा है वो एक सक्सेलेंट प्लांट है, या इट इज़ अ डेजर्ट प्लांट. लेकिन और भी प्लांट्स हैं जैसे जिनके लीफ जो है वो मोटे मोटे से होते हैं, उनको हम सक्सेलेंट प्लांट कहते हैं. जिसमें लगता है कि लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है तो उसको हम सक्सेलेंट प्लांट कहते हैं. ठीक है. तो सक्सेलेंट प्लांट जो है उनमें, क्योंकि उनको पानी की कमी रहती है तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं करना चाहते, ताकि वो अपने अंदर का जो पानी है, वाटर है, वो बचा के रख सके. तो इन दैट केस दे डोंट वांट टू ओपन देयर स्टोमेटा एट डे टाइम. तो व्हाट शुड दे डू फॉर फोटोसिंथेसिस? क्योंकि स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो फिर उनको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा? तो फॉर दैट दे ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट टाइम. At night time when they open their stomata, they take in CO2 and they store this CO2 in the form of organic acid. CO2 वो रात में लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में अपने अंदर जमा करके रखते हैं. जब रात होती ड्यूरिंग नाइट में वो CO2 स्टोर कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में, और डे टाइम में वो अपना स्टोमेटा ओपन नहीं करते. उस टाइम वो सिर्फ सनलाइट यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो इन दिस वे दे डज फोटोसिंथेसिस. सक्सेलेंट प्लांट डज फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम एंड दे ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट टाइम टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू.
If you have any problem, you can give your suggestion and other feedback in the description box. Thank you, children.